It is about known people's unknown light-hearted things. Every professionally accomplished and successful individual has an unseen side, a softer side, a family avatar, a youth, a childhood, some hobbies, few secrets, and a certain passion. Just to bring that hidden side in the forefront, we get to hear a 15-minute autobiography of people in their own style, in their own fashion, in their own swag. We bring to you जाने अनजाने मेरी कहानी मेरी जुबानी. Born in a renowned Zamidar family in Meerut, brought up in a police service culture, our guest today is a highly educated ex-Indian Army officer who had a successful tenure in the corporate world as well. Bestowed with various awards and accolades, presented papers on various national and international platforms, an author, a teacher, a trainer, and a true inspiration. A well-known name in the security industry, Captain Shashi Bhushan Tyagi, who does not need any further professional introduction. लेकिन आज हम जिनसे बात करने वाले हैं वो एक शायर हैं, शेफ हैं, पेंटर हैं और कारपेंटर भी, कार रैली ड्राइवर हैं और पैराग्लाइडर भी। बहुमुखी प्रतिभा के धनी श्री शशि भूषण त्यागी, जाने अनजाने में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। Thank you, Rajiv. It is my pleasure to be on your show, and I feel extremely honored and privileged. सर, जाने अनजाने का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम आप ही की कहानी आप ही की जुबानी सुनना चाहते हैं। As we say, in your own style, in your own fashion, and in your own swag. Rajiv, true to Geminian's qualities, and incidentally, I am Gemini, and they are supposed to have dual personality, and I do not make any exception. I am dual personality, and there is one facade which is very carefully and artfully created, and behind that facade is certain different dimensions of my personality, which most of the time remain hidden. And since I am by nature introvert, so most people, most of the time, are not aware of those attributes of my personality. But then, yes, I have a kind of projection for professional use, and those who come into my intimate circle, they know Tyagi very differently. राजीव, आपने जो बताया था कि जमींदार फैमिली से मैं हूँ। जमींदार फैमिली के लोगों का कोई रिटन एग्जाम नहीं होता था, बस देख लेते थे, पूछ लेते थे, फादर चले गए पुलिस में। लेकिन फादर से पहले और उनके बाद भी और हमारे जनरेशन में काफी लोग पुलिस में गए हैं। इनफैक्ट हमारी फैमिली पुलिस वालों की फैमिली के नाम से ही जानी जाती थी और लंबो की फैमिली कहलाती थी, बिकॉज एवरीवन वाज अबव 6 feet. I am only exception of that traditional name of our family. तो लंबो की फैमिली में एक मैं एक्सेप्शन हुआ जो पुलिस ज्वाइन नहीं करना चाहता था. I joined army and I did a very short tenure, but then that tenure which gives me immense satisfaction and the realization that those 5 short years which I served in Indian Army made me a man. And made me a man what I am today. An entire credit goes to my army career. And I got Chief's Commendation Card twice. And even when I was in army, I got the offer to join Gas Authority of India Limited. That is what it was called. Today it is called GIL India Limited. And I joined GIL India Limited as its first security chief. And that is how I started my industrial security career.
and it has given me recognition and liberty till the last day of my career. And then after retiring, I regroup and re-energize myself and started full-fledged operation of industrial security forum today, which is very well-known name, and its logo is very highly visible. And this is called International Council of Industrial Security and Safety Management. And this is my full-time dedication, giving back to the profession which has given me so much. पहला जो कमेंडेशन मुझे मिला था उसके बारे में मैं बताता हूँ। ऑफिशियली तो एक रिकॉर्ड है और एक मेडल है जो मैं कभी सादी वर्दी में यानी कि सादे कपड़ों में मैं पहन लेता हूँ 26 जनवरी को, 15 अगस्त को, लेकिन उसके पीछे जो कहानी है, पर्सनल कहानी, वो लोगों को पता नहीं। ये मालूम है कि मैंने एक इम्पोस्टर पकड़ा था और वो बाद में ये प्रूव हुआ कि वो ISI का एजेंट था। नजर पड़ी एक मुझे आर्मी ऑफिसर पर, और वो आर्मी ऑफिसर की जो वर्दी थी, जो उसके जूते थे, जो उसका ब्रीफ केस था, बड़े आंखों में खटके। सो वेरी ब्लंटली आई आस्क्ड हिम दैट सर, show me your identity card. I have already established my identity. So now show me your identity. That officer was arrested. Later on, he had 2 more identity cards in his possession and 3 girlfriends' photograph. The moment I saw 3 girls' photograph, he got a tight slap from me. And I told him that genuine officer in front of you, यहाँ एक के लाले पड़े हुए हैं और तेरे पास 3 गर्लफ्रेंड है। So that was lighter side of how I got the citation from Chief of the Army Staff. Yes, ये बात सही है कि जब मूछें आ जाती हैं, दाढ़ी आ जाती है, पहली बार जब शेव करते हैं, शीशे में सामने देखी जाती है। हालांकि गुरदास मान ने तो एक गाना गाया भी, एक मामला गड़बड़ है, वो लड़कियों के बारे में था, लेकिन लड़कों के बारे में भी उसमें जिक्र है। तो जब मामला गड़बड़ होता है तो इश्क होना इंतहाई जरूरी है। वो एक एक्सपीरियंस है जिसके हुए बिना जवान अगर हो गया लड़का तो उसकी जवानी बर्बाद समझो। और कई बार नहीं भी होता है ना, तो उस उम्र में एक इमेजिनरी इश्क हो जाता है, ख्यालों में होता है कि कोई होगी, कहीं कोई होगी, कोई इंतजार कर रही होगी और क्या क्या करेंगे, कैसे कैसे करेंगे। तो वो तो हमारे साथ भी हुआ है। अच्छी बात ये रही कि मैंने हिंदी को भी प्रयोग किया और मैंने उर्दू का भी इस्तेमाल किया। तो जारी है, अभी भी शायरी जारी है, इश्क अभी भी जारी है। अर्ज करता हूं मैं, और वो हालात वो है कि वो अपने घर में है और मैं अकेला हूं, और उस वक्त के हालात का बयान कर रहा हूं मैं कि मेरे हालात का अंदाजा तुझको तो है, यही सोचकर मैं खत नहीं डालता। शिकायत थी कि चिट्ठी लिख दिया करो। उस वक्त चिट्ठी लिखी जाती थी, मोबाइल फोन तो थे नहीं, बड़ौदा की बात है। तो मेरे हालात का तुझको अंदाजा तो है, यही सोचकर मैं खत नहीं डालता। समझोगी, सोचोगी और परेशान भी होगी, कुछ भी लिखने को मेरा मन नहीं मानता। मेरे हालात का तुझको अंदाजा तो है, यही सोचकर मैं खत नहीं डालता। तेरी यादों से वाबस्ता मैं हर पल रहा हूं, तेरी यादों से वाबस्ता मैं हर पल रहा हूं, वफा कर रहा हूं जफा मैं नहीं जानता। मेरी हालत का तुझको अंदाजा तो है, यही सोचकर मैं खत नहीं डालता। हर सुबह मैंने उठकर तेरी तस्वीर देखी, हर सुबह उठकर मैंने तेरी तस्वीर देखी। ख्वाबों में बुलाने की तदबीर नहीं जानता, ख्वाबों में बुलाने की तदबीर नहीं जानता। हर सुबह मैंने उठकर तेरी तस्वीर देखी, ख्वाबों में बुलाने की तदबीर नहीं जानता। मेरे हालत का तुझको अंदाजा तो है, यही सोचकर मैं खत नहीं डालता। समझोगी, सोचोगी और परेशान भी होगी, कुछ भी लिखने को मेरा मन नहीं मानता।
छोटा परिवार, सुखी परिवार, 2 बच्चे, 1 लड़का 1 लड़की और शेरी, साथ में हम पति पत्नी। मेरे परिवार में शेरी नाम का बॉक्सर फीमेल डॉग हमारा पेट है। घर का हिस्सा होता है, जो डॉग लवर है वो जानते हैं कि अगर उनको अपने परिवार का सदस्य नहीं बनाया गया तो इसका मतलब है कि वो फर्जी डॉग लवर है। तो मेरे परिवार का हिस्सा। मेरी वाइफ, मेरी पत्नी प्रमिला त्यागी, वो बीए उन्होंने किया, उसके बाद बीएड किया, फिर एमए हिंदी में किया, फिर एलएलबी किया और अभी हाउसवाइफ है। और मेरे लिए काउंटर बैलेंस की तरह से हमेशा काम किया है। मैं थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ और बहुत ही जल्दी उखड़ने वाला। वो बड़ी धीर गंभीर और बड़ी सहज मुस्कान चेहरे पर रखने वाली महिला। अच्छा, मैं आपको जो बताना चाह रहा था कि आजकल जो मेरा फेवरेट पास टाइम है वो कबाड़ से जुगाड़ करना। घर के बगल में एसी लगे थे, एसी के जो थर्माकोल के डिब्बे थे, वो डिब्बों का इस्तेमाल कर लिया मैंने और एक कैस्केडिंग वाटरफॉल बनाया, 3 टियर कैस्केडिंग वाटरफॉल बनाया। और खाली बोतलें मिल जाती हैं, उनकी डेकोरेशन कर लेता हूँ। जो मेरे आर्मी में कोर्समेट हैं या जो मेरे और परिचित लोग हैं जो शौक रखते हैं अच्छी विस्की का, तो मैं विस्की की बोतल सील बंद बोतल के ऊपर वैल्यू एडिशन करके गिफ्ट के लिए तैयार कर लेता हूँ। मैं पैराग्लाइडर रहा हूँ और हैंग ग्लाइडर रहा हूँ। मैंने पैरा जंप्स भी किए हैं। मुझे ऊंचाई से डर लगता है। छत पर मैंने मुंडेर को स्पेशली हाई ऊंचा करवाया है ठेकेदार से कह के, और मैंने कहा कि बच्चे गिर जाएंगे, लेकिन बाद में मैंने वाइफ के साथ मैंने शेयर किया कि मुझे हाइट से डर लगता है। So these are, like I said in the beginning, Geminian, inherent contradiction, dual personality. लाइफ में उनके जो है डिफरेंट जो डायमेंशन है वो एक दूसरे को अपोज करते हुए दिखते हैं, और मेरे केस में ये है। Thank you very much for your time. It was lovely talking to you, and it was indeed a pleasure to, मतलब मेरे लिए personally तो हमेशा ही बहुत, I always enjoy your company and talking to you. So thank you very much for being on the first episode of Jaane Anjane. Rajiv, I feel very immensely privileged and feel very happy and proud that you thought me to be worthy of your time and your space. I deeply enjoyed, and I shall cherish this Jaane Anjane mug. Very beautifully designed, and I enjoyed sipping whatever I am sipping today. And I think I'll continue using this mug till you call me again and gift me another mug of different design. But keep this logo. This is a beautiful logo. With that, ladies and gentlemen, we come to the close of first episode of जाने अनजाने, और ऐसे ही कुछ जाने माने लोगों की अनजानी बातों के साथ we will catch you very soon. Till then, stay tuned with us.